Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Sad Sadek here for Pak Passion, bringing you another exclusive interview. Delighted to be joined by a regular guest of Pak Passion. He's a former Pakistan Test cricketer and played in domestic cricket for a number of years. Wicketkeeper batsman who accomplished a lot in Pakistan cricket in the domestic circuit. And after he retired from playing, he's coached all around the world, holding important positions in Lahore Qalandars, at the PCB, worked for the ECB as well as a scout, and he's worked at Lancashire, and he's also worked for the Germany national team as well. And he's a level 4 ECB qualified coach, and that is a fantastic achievement. Very warm welcome once again to Atiq Uzzaman. Atiq, I hope you're well. Assalamu alaikum. I'm really, really well. Thank you. Let's start with the PSL, which is obviously in progress at the moment. I look at the squads and there's always one or two surprising selections in these squads. You've coached in the PSL. What's going on with these surprising selections? It's always wondered. Some wondered players comes in from backdoor sometimes. And when I was with Lahore, there were some players being bought on the auction, and we've been told they've been bought because one of the players is very quiet, so he needs some entertainment. So we need to get his mate in the squad. So these kind of selection happens. You can expect from franchises in PSL. And then when in terms of the fairness of the players, top quality players or top quality coaches, I think franchise lacks these kind of stuff. At the minute, I feel like they're all interested in making their name, and then want to bring people who the fans can talk about rather than producing a good cricket environment. And I think PSL, I watched a couple of games I didn't really like. I couldn't be bothered watching it because the standard as compared to IPL is completely low. And, no wonder we're not getting closer to the IPL. We're not even close to it. So something we have to think about, bringing top quality players. And, having PSL during IPL is not ideal either, but I don't know why it happened. I've got some guesses why it's happening, but I don't want to disclose it on the camera. I don't think it's fair to do that. And people who are very close to the cricket and understand the technicality of the timing of IPL and PSL, they will tell you that why it's happening in the same time. But I'll leave it up to them to realize. When you say some of these guys are brought in for entertainment, what are they? Good singers or comedians? The mates. It's all about bringing their mates in there. Everybody look after everybody in there. So I had a very bad experience with one of the franchise, and even my family was there. They weren't allowed to go in the ground. I could not even get them tickets from my own franchises because all the tickets were going to the high authority friends of the owners and high authority friends of the platinum players and all kind of stuff like that. So yeah, I had a bad experience. I didn't like it. It's a great environment to be with if the franchise is really good, the environment, the culture is really good. There are a couple of, I'm not criticizing all the franchises, all not same, but I had a bad experience in that. And then obviously this is what it is, and we have to get on with it. And then hopefully, as a Pakistani, I really, really hope and believe that our league goes on the highest standard as well, and everybody should go and prioritize playing for PSL franchise rather than playing in IPL. One of the talking points at the moment are the Karachi crowds and the lack of fans turning up. You got the home team, Karachi Kings, playing at the home stadium. And National Stadium, Karachi is one of the iconic grounds around the world. I mean, I always remember growing up watching matches from there, and they were packed. What's the reason people aren't turning up? And it's not like it's even half full at the Iqbal. एक ये भी मसला है कि नेशनल स्टेडियम उस जगह पे बना हुआ है ना, जिस जगह पे जाने के लिए जिस तरह की रोड्स को ये लोग ब्लॉक कर देते हैं ना, उन रोड से फिर पैदल चलना एक तो इंतजाम बहुत खराब है नेशनल स्टेडियम का. आई मस्ट remind these and state these things to the fans और listeners के कराची स्टेडियम के अंदर जाना एक बहुत बड़ा डायलेमा है, क्योंकि रोड वहां से बंद कर देते हैं ये लोग
कि वहां से पैदल वॉक होगी 2 या 3 किलोमीटर। अब उसमें बूढ़े और बच्चे किस तरह जाएंगे, आप मुझे ये बताएं। ठीक है, जो जवान लोग हैं, जो फिट लोग हैं, वो भी जा सकते हैं। और इतनी गर्मी में, अभी कराची में मौसम भी बहुत गर्म है, तो दिन के मैचेस जो होंगे उसमें वॉक करके जाना बहुत मुश्किल काम है। ये एक अरेंजमेंट, ये जो मैनेजमेंट है, इनको अरेंजमेंट का सोचना चाहिए। मैंने तो ये सुना है कि टॉयलेट्स का भी बड़ा मसला है कराची के अभी स्टेडियम में फिलहाल। खाने वाने का मसला होता है, पानी का मसला होता है, काफी जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, जो रिक्वायरमेंट है, वो पूरी नहीं हो पा रही वहाँ की। तो ये पीसीबी को देखना चाहिए इसके। देखिए, कराची के क्राउड को आप है ना कह सकते हैं कि हाँ जी, हो सकता है कि पॉलिटिकली वजह से ये नहीं आ रहे होंगे, मगर जो अदर हैं, जो आना चाहते हैं, वो भी नहीं आ पा रहे ना, वो मैनेजमेंट की वजह से है। तो देन पीसी हैव टू थिंक अबाउट इट एंड सी हाउ कैन दे रीशेप वेयर द फैंस कैन कम वेरी इजीली टू द ग्राउंड। Iqbal, let's talk about Babar Azam. First three matches, he really struggled, hardly scored a run, and then made some runs against Karachi Kings, 40 or so. But even then, he could have been out a couple of times, and it was a scratchy sort of innings. Three times he's been out the left armers as well. I mean, there's some technical issues there, definitely, isn't there? ये पहले भी मैंने बोला कि बाबर को आउट करने के लिए हम जब लाहौर में थे, उस वक्त भी हमने मुस्तफीज से इन स्विंग करा के पहली दूसरी बॉलों पे आउट कर दिया था बाबर को, क्योंकि बाबर की ये वीकनेस है कि उसका जो ट्रिगर मूवमेंट के बाद जो पहली मूवमेंट होती है ना फ्रंट फुट की, वो क्रॉस चली जाती है थोड़ी सी। हम कहते हैं कैंची बनना अपनी क्रिकेटिंग टर्म में, तो वो बनती है बाबर की। और अगर बाबर उस चीज को मैनेज कर लेता है तो वो सरवाइव कर जाता है लंबा। अगर उस चीज को मैनेज नहीं करता तो वो बॉल आके पैडों पे ठक्कर के लग जाती है। तो मोहम्मद आमिर और इस तरह के जो अंदर लाने वाले बॉलर हैं, डेविड विली और ये बड़े चालाक बॉलर हैं, इन्होंने प्लान किया हुआ था कि पहली दो बॉलों पे चौके का रिस्क लेते हैं, फुल गेन करते हैं, पैडों पे मारने की कोशिश करते हैं, और वो बाबर के लगी जा रही है। वो टेक्निकल इश्यू है, काफी अरसे से चल रहे हैं। और जिन जिन के साथ बाबर ने काम किया है, मुझे तो उनकी क्या कहते हैं, महारत पे शक होने लग गया कि यार इतनी स्मॉल मार्जिन ऑफ एरर है ये। अगर आप इस चीज को ठीक नहीं करा पा रहे बाबर की, जो 3-4 साल से कंटिन्यूअसली चल रही है, तो कैसे ठीक कराओगे। देखिए, प्लेयर का भी इसमें बहुत बड़ा है ना मोटिवेशन होती है किसी चीज को ठीक करने के लिए। मैंने यूनुस खान को देखा था कि यूनुस खान जो है हर कंट्री में अपनी डिफरेंट टेक्निक अडॉप्ट करके खेलता था, कि उसके पास अडॉप्टेशन की टेक्निक होती थी कि भाई ऑस्ट्रेलिया में इस तरह खेलना है उसने, खड़ा होकर खेलना है, श्रीलंका पाकिस्तान में बहुत झुक के खेलना है, इंग्लैंड में वो करीब की बॉलों को भी छोड़ने की उसकी बहुत आदत होती थी। टेक्निक अपनी चेंज करता था, स्ट्रेटेजी चेंज करता था, तभी उसने इतने बड़े रन बनाए। मुझे लगता है बाबर थोड़ा सा स्टबन है इस मामले में। वो एक ही तरीके से खेलता है तो चाहता है कि इसी तरीके से मैं रन करूंगा, मगर कभी कभी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है चीजों को। आपको अपनी वैल्यूज और आपकी जो स्टबननेस है उसको थोड़ा सा पिघलाना पड़ता है और जाना पड़ता है रियलिटी में, और आपने दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। देखिए, बाबर बहुत बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर टेक्निकल छोटे छोटे एरर आने अगर आपको आपका कोच और आप मिलकर काम नहीं कर पा रहे, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू मेंटली। तो मुझे तो नहीं पता कि क्या उसके साथ सिचुएशन इस वक्त चल रही है। ऑब्वियसली उस पर प्रेशर इतना डाला है पूरी आवाम का, मीडिया का, सब लोगों का प्रेशर है, टीम के अपने लोगों का भी प्रेशर है उसके ऊपर। तो उस प्रेशर से उसको किसी तरह निकालना है। तो मैंने तो पहले भी ये बोला था, यू नीड अ वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट वेयर ही कैन वर्क विद हिम। अगर वो अभी इंटरेस्टेड है तो मैं उसकी बहुत अच्छी कनेक्शन करवा सकता हूँ यहाँ पे एक कंपनी के साथ, जिसके साथ मेरी कोलाब्रेशन हुई है अभी। दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू स्पीक टू बाबर आजम अबाउट हिज परफॉर्मेंसेज एंड ट्राई टू गेट हिम ओवर दोस थिंग्स। अगर वो इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में तो जरूर मैं उसके है ना कोलेब्रेशन करा सकता हूँ उनके साथ, है ना, इट विल हेल्प हिम आउट। इसमें देखें कोई शर्म की बात नहीं है। आपका कोई, देखें, अतीक जमान छोटा सा नाम है, ठीक है, कोई बात नहीं, मगर कोई जरूरी नहीं है अतीक जमान आपकी किसी तरीके से हेल्प नहीं कर सकता। हमने भी थोड़ी बहुत एजुकेशन की हुई है, एक्सपीरियंस लिया हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या चीज़ है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या चीज़ है। तो वो अगर आप उसको नहीं समझोगे और अगर आप उसको इग्नोर करते रहोगे तो ये आपके साथ प्रॉब्लम चलती रहेगी। टेक्निकल एरर भी मेंटल एरर की वजह से होते हैं। आपकी परफॉर्मेंस खराब हो रही होती है, आपकी मूवमेंट चेंज हो जाती है, आपकी ट्रिगर मूवमेंट डिफरेंट हो जाती है प्रेशर के अंदर, क्योंकि आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा होता। उस प्रेशर से किस तरह निकलना है, वो आपका एक अच्छा स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आपको है ना चीजों से निकाल सकता है और आपकी हेल्प कर सकता है, और बाबर को मेरे हिसाब से इसकी जरूरत है। Iqbal, let's talk about Islamabad United. At the moment, top of the league, looking very strong, um, strong in all areas. लेकिन कोच की बात करते हैं, what does Mike Hesson give them as a head coach? देखें, बिलीव होता है, देखें इस लेवल पे ना कोचिंग का, कोचेस का इतना कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता। स्ट्रेटेजी बनाते हैं, मगर एक दफा इस फ्रेंचाइज में ये है कि मैंने ये सीखा फ्रेंचाइज क्रिकेट से, फ्रेंचाइज क्रिकेट में अगर आपका एक हेड स्टार्ट अच्छा हो जाए ना, तो वो आपकी मोटिवेशन चलती रहती है। उसमें फिर कोचिंग की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। आप कोचेस को ठीक है क्रेडिट देते हैं बहुत सी दफा,
मगर कोचेस क्या करता है कि वो मेक श्योर कि वी प्रिपेयर्ड वेल बिफोर द मैच, वी प्रिपेयर्ड वेल, एवरीबडी स्लीप्स वेल, एवरीबडी डू ऑल द प्रिपरेशन, ऑल द बॉक्सेस राइट, मैनेजमेंट इज सॉर्टेड, टीम पिक जो सिलेक्शन है वो अच्छी होनी चाहिए कंडीशन के हिसाब से। सो कोचेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ये अच्छे तरीके से माइक हैसन कर रहा है मेरे ख्याल से, और जिसकी वजह से उनका कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा से कंपेटिटिव टीम रही है, काफी अच्छी प्लेयर है उनके अंदर, और सेम प्लेयर खेल रहे हैं काफी अरसे से, जिन्होंने एक टीम का एक न्यूक्लियस बनाया हुआ है, जिसकी और साइड में वो अपने प्लेयर्स को चेंज करते रहते हैं, अच्छे यंगस्टर्स का कॉम्बिनेशन भी उन्होंने बनाया हुआ है। तो देयरफॉर दे आर देयर ऑन द टॉप, और मुझे लगता है कि बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जीतने के लिए भी। I think, well, let's talk about Jason Gillespie and the Pakistan cricket board. Obviously, Jason Gillespie walked away from the role initially to test head coach staff. फिर तीनों formats में फिर Akib आया. He did his work behind the scenes. Akib and Jason Gillespie walked, and obviously Gary Kirsten walked. Jason Gillespie is saying that he's owed money by Pakistan Cricket Board. He says that he's owed money for the Test series win against England, जो bonuses होते हैं head coach के लिए, and also for the tour of Australia. PCB is saying that he should have given 4 months' notice. It's a difficult situation. It looks bad for Pakistan cricket. इट इज ऑलवेज, देखें बहुत बुरी सी बात है कि अगर आप थोड़े बहुत $1000 के लिए आप अपनी रेपुटेशन को रखते हैं प्लेट के ऊपर, तो अच्छी चीज़ें नहीं है। देखें फ्यूचर में भी अगर पाकिस्तान ने फॉरेन कोचेस लाने हैं तो उनकी रिजर्वेशन होंगी। उन्होंने देखा है कि मिकी के साथ और फिर ग्रांट के साथ और फिर अब जेसन और गैरी कर्स्टन के साथ जिस तरह की उनके साथ सलूक हुआ है वो अच्छा नहीं है हमारे मुल्क के लिए। पहली बात तो ये देखें साहिद भाई, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी कोच होना चाहिए। आप अपने कोचेस को इस लेवल पे डेवलप कर दो कि वो आपके लिए बेस्ट बने। देखें आप देखें राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, इन्होंने इंडिया की टीम को आगे लेके गए हैं। अब क्या नाम है उनका, लेफ्ट हैंड बैट्समैन वो कोच है उनका, तो गंभीर कहाँ है? हाँ, किधर है सारे? गौतम गंभीर अब लगा हुआ है, तो कहाँ है? इंडिया ने क्यों नहीं फॉरेन कोचेस को बुलाया? इंडिया ने शुरू में बुलाया, अपने कोचेस को डेवलप करवाया। अभी भी यही कर रहे हैं कि आईपीएल में आप देखेंगे एक दो उनके अपने कोचेस होते हैं, बाकी सारे लोकल कोचेस उन्होंने ट्रेन किए होते हैं। आईपीएल का स्टाफ बहुत बड़ा होता है। हमारे मुल्क में ये कल्चर है नहीं। एक आप लेकर आते हो उनको, फिर उसके बाद आने के बाद आप जो उनसे कमिटमेंट करते हो उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करते। एक तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस बड़ा है, सेलेक्टर है उनका अपना इन्फ्लुएंस है, बाहर से प्लेयर है, कप्तान और है ना जो एजेंट्स है उनका अपना इन्फ्लुएंस है। देखिए आप ये चीजें खत्म करें। अगर आप एक कोच को लाते हैं उसको फुल अथॉरिटी दें, उसको 3 साल दें काम करने के लिए। पाकिस्तान की वाहिद टीम है, उसके 7 से 8 कोचेस चेंज हो सके अगले पिछले 5-6 सालों के अंदर। वाहिद टीम है दुनिया की जिसके इतने कोचेस चेंज हुए हैं। खेल बना दिया हम लोगों ने इन चीजों को। अभी भी हेड कोच का इश्तेहार दिया। भाई जब आपने आकिब भाई को कोच बनाया है, ठीक है ना, तो आप उनको करने दो ना। फिर 2-3 साल करने दो, पूरे 2-3 साल अच्छे तरीके से करके देख लो। पहले तो आकिब भाई को, फिर मुझे ऐसा लगता है या तो आकिब भाई ने खुद ही वो कोचिंग करना नहीं चाह रहे हैं। सुनने में मेरे यही आया था कि वो एकेडमी के जो डायरेक्टर है उसमें इंटरेस्टेड है, ताकि जो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियस है, बेस है, उसको वो अच्छा करें, विच इज गुड। कि एक अच्छी बात है कि ना बंदा नीचे काम करना चाह रहा है हेड कोचिंग में। मगर आप हेड कोच आप लाएंगे तो किसको लेकर आएंगे? आप मुझे बताएं। आप फिर से फॉरेनर कोच लेकर आएंगे, फिर से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। जब फॉरेन कोच आएगा तो आपके साथ यही प्रॉब्लम होगी ना कि उसको हमारे कल्चर का और हमारी मेंटालिटी का इतना पता नहीं है कि उसको पाकिस्तान के साथ किस तरह डिप्लोमेसी से चलना है। एक तो यहाँ पे आप अथॉरिटी नहीं देते। दूसरी बात, जब आप अथॉरिटी देने की सोचते हो तो इतने बाहर से इन्फ्लुएंस आ जाते हैं जो उनके काम पे अफेक्ट करना शुरू करते हैं। देन दे गेट फेड अप एंड दे रिजाइन। भाई अगर आपने पाकिस्तान का कोच लाना है, सोच समझ के क्वालिफाइड बंदा जिसके अंदर स्किल हो, जिसने इन प्लेयरों को मैनेज किया हुआ हो, इस तरह के बड़े बड़े प्लेयरों को, आप उस लेवल के कोचेस लेकर आए ना। आपने एडवर्टाइज दे दिया लेवल 3 कोच, यार पाकिस्तान की नेशनल टीम में लेवल 4 का दो ना। इनको पता है लेवल 4 तो पाकिस्तान में से 2 ही है। वो इस लाइन में आ जाएंगे। लेवल 3 होंगे तो उनके सारे चाहने वाले जितने जिनको उन्होंने जॉब की ऑलरेडी ख्वाब दिखाए हुए, वो सारे लेवल 3 होंगे। आप मुझे बताएं ना यार, यहाँ काउंटी की टीम में लेवल 3 कोचेस नहीं रखा जाता, लेवल 4 कोचेस रखे जाते हैं। अगर आपने लाना है आप टॉप क्लास, आपके होम ग्राउंड कोचेस कहाँ चले गए? आपको नजर नहीं आ रहे? चले मैं अपनी बात नहीं करता साजिद भाई, मैं अपनी बात नहीं करता कि मुझे पाकिस्तान टीम में कोच होना चाहिए, मगर पाकिस्तान की जो टीम है 70% जो प्लेयर है, दे ऑल प्लेड अंडर माई कोचिंग इन डोमेस्टिक क्रिकेट। तो आपके जहन में बात नहीं आती कि यार ये इन प्लेयरों के एरा में जो कोचेस थे, डोमेस्टिक के जो टॉप कोचेस थे, उनको आइडेंटिफाई करें, उनको हाईलाइट करें, उनकी क्वालिफिकेशन चेक करें, उनको मौका दें सही तरीके से, जिसको भी देना। मैं ये नहीं कह रहा मुझे मौका दें, ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तानी कोचेस को डेवलप करें, वरना ये प्रॉब्लम चलती रहेंगी। आप 90 के प्लीज प्लेयरों को छोड़ दें, उनकी जान छोड़ दें, मैं आपसे
कहता हूँ चेयरमैन साहब के 90 के प्लेयरों को बिल्कुल साइड में करें, अगर उनको उससे काम लेना है, उनसे डोमेस्टिक में काम लें, उनको नेशनल टीम में करीब भी ना आने दें। आप यंग कोचेस को लेकर आए, बना दें यासिर अरफात को हेड कोच। मैं तो कहता हूँ आपके अंदर इतना दम है, नहीं है, आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी यंग लड़के को नहीं देंगे। लेकिन अतीक भाई, यासर अराफात को देखो, ही इज लेवल 4, आप भी लेवल 4 है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों तो ओवर क्वालिफाइड है फॉर द जॉब। यार ये मैं पिछले 7-8 साल से यही सुन रहा हूँ, जिस जगह पे मैं पीसीबी की जॉब अप्लाई करता हूँ ना, मैं 7-8 साल से यही चीजें सुने जा रहा हूँ यार। ओवर क्वालिफाइड होना बुरी बात है क्या? मेरे ध्यान में था कि मैं एक टेस्ट और 3 वनडे खेला हूँ, तो मैं उन लोगों के साथ compete नहीं कर सकता जो 50-50 टेस्ट खेले हुए हैं कोचिंग फील्ड में। तो मैंने कोचिंग को एक दूसरे नजरिए से देखा, मैंने देखा, मुझे पता चला, मैंने अपने आप को एनालाइज किया, मुझे पता चला कि मैं बहुत ही खराब कोच था। तो मैंने अपनी कोचिंग को सीखा है, मैंने सारी रिसर्च की कि कोचिंग किस तरह होती है। कोच, आप पैदाइशी कोच नहीं होते, ना पैदाइशी लीडर होते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन से सीखते हैं इन चीज़ों को। तो मैंने इन चीज़ों से सीखा है। मैंने लेवल 4 के साथ साथ स्पोर्ट्स साइंस में भी डिग्री की, क्योंकि मुझे पता था कि स्पोर्ट्स साइंस की डिग्री की बहुत अहमियत है। फिर मैंने मास्टर्स भी किया है स्पोर्ट्स कोचिंग में। और उसके साथ फिर मैंने सिर्फ डिग्रियां लेके बैठ नहीं किया, फिर मैंने काम किया। मैंने स्विगेस के साथ 5-6 साल लगाए हैं। स्विगेस की टीम एक लेवल पे पहुंच गई थी, आज स्विगेस के 5-6 प्लेयर पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। आगा सलमान को मैंने आइडेंटिफाई करके लाहौर कलंदर में आकिब जावेद को कह के टीम में डलवाया था कि आप इसको लें, क्योंकि एक छुपा हुआ टैलेंट था। आज आगा सलमान पाकिस्तान की T20 का कप्तान है। तो ये सारी चीजें कर कर आई हैं, एक्सपीरियंस से सीखा है। अगर आप पीसीबी को ये चीजें नजर नहीं आ रही तो ये उनका फॉल्ट है, मेरा नहीं है। और अभी जॉब की एडवर्टाइजमेंट आई है तो मगर मेरा दिल तो बहुत करता है कि मैं पाकिस्तान के लिए अप्लाई करूं, मगर मैं अप्लाई नहीं करूंगा। क्योंकि आप ये जो जितने कोचेस को एम्प्लॉय करते हैं, आप उनको क्या कहते हैं कि अप्लाई करो जॉब के लिए, आपने पहले से ही उनको पिक किया हुआ होता है। तो आपको पाकिस्तानी कोचेस नजर नहीं आ रहे जो क्वालिफाइड है, दुनिया में दूसरी जगहों में काम कर रहे हैं? आप जरा अपनी आंखें खोल के अपनी रिसर्च को ब्रॉड करेंगे तो आपको नजर आएंगे लाजमी। अतीक भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो वेदर यू एग्री और नॉट, लेकिन पीसीबी ने ऑलरेडी डिसाइड किया कि हु विल बी डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस और हु विल बी हेड कोच। तो ये जो क्या कहते हैं, प्रोसेस कर रहे हैं टू एडवर्टाइज द जॉब। देखिए, मुझे भी जब पीसीबी ने जॉब दी थी ना, तो एडवर्टाइजमेंट के 2 महीने पहले अग्रीमेंट हो गया था मेरा पीसीबी के साथ, वर्बली। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आई, फिर मैंने अप्लाई किया, फिर इंटरव्यू हुआ, जॉब मैंने ऑलरेडी साइन कर चुका था। तो यही होता है। अब मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक ये लगता है कि आकिब जावेद विल बी द हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर ऑफ हाई परफॉर्मेंस। आई हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग नॉलेज फ्रॉम अराउंड पीसीबी और दूसरे फ्रेंड से कि आकिब भाई मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो तो उनको जबरदस्ती उसमें घुसाया, तो वो करना चाहते हैं। तो विच इज गुड कि अगर आपने कोई आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा। मगर हेड कोचेस के लिए आप मुझे बता दें, आपने एडवर्टाइज दिया लेवल 3 का, तो इसका मतलब यही है कि आप लेवल 3 ढूंढ रहे हो। आपने अपनी जो रिसर्च है जिसमें जो लड़के फिट होने वाले हैं, आपने उनको फिट करने के लिए एडवर्टाइज दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप हाई क्वालिफाइड बंदा लाएं जो पाकिस्तान टीम को अच्छा करे। पाकिस्तान टीम को अच्छे कोच की जरूरत है, भले जो भी हो, जो भी आए वो आए, कम से कम 3 से 4 साल काम कर कर जाए यहाँ पे। ये नहीं कि एक साल में पैसे कमाए, उसके बाद निकल गया, कॉम्पनसेशन ली और फिर अपनी सीरी बना के निकल गया। नहीं, आप वो लाएं जो कमिटेड हो पाकिस्तान के साथ, जो 24 आवर्स पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट भी जाके देखे, पाकिस्तान की विमेंस टीम को भी ऑब्जर्व करे। हर विमेंस से उसका काम नहीं है, मगर मैं कह रहा हूँ कि उसका इंटरेस्ट होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में, अपनी जॉब में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको इस तरह के बहुत लोग मिलेंगे जिनको जॉब में इंटरेस्ट है, वो अपनी सीवी बना के निकल लेते हैं, दूसरे मुल्कों में लग जाते हैं, मगर पाकिस्तान की क्रिकेट को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो हमें ऐसा बंदा चाहिए जो क्रिकेट को थोड़ा ऊपर लेके जाए। आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड फाइनल क्वेश्चन अतीक भाई अबाउट Indian comparison to Pakistani, के obviously in the IPL national team majority जो coaches है Indians है, लेकिन हमारे देखो PSL में भी some foreign coaches है। I think the issue needs to be that हमारे जो young coaches है, upcoming coaches, they should be working under the likes of Mike Hassan, working alongside Ravi Bopara और ऐसे to learn the ropes। मुझे तो रवि बोपारा का आपने नाम लिया, मुझे वो भी समझ में नहीं आई, क्योंकि रवि बोपारा का प्रीवियस एक्सपीरियंस फ्रेंचाइज लेवल पे एज अ हेड कोच क्या है, ठीक है ना। शेन वॉटसन आया था, मुझे वो भी समझ में नहीं आया कि प्लेयर रिटायर होता है ठग करके उस चीज फ्रेंचाइज का हेड कोच बन जाता है। गिब्स आया था, मुझे वो भी समझ में नहीं आया। माइक हैंसन समझ में आता है, माइक हैंसन कि उसने बड़े लेवल पे काम किया, इंटरनेशनल लेवल पे काम किया, वो उसका एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि मैनेजमेंट क्या होती है, प्लेयर मैनेजमेंट क्या होती है।
मगर हमें भी यही चाहिए कि हम फ्रेंचाइज, जितनी भी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज है उसमें अब टॉप क्लास कोचेस हो और उसके अंदर हमारे होम ग्रोन कोचेस हो। फ्रेंचाइज को चाहिए आइडेंटिफाई करें, अगर मुल्तान के कोचेस हैं तो मुल्तान के कोचेस लगाने चाहिए, कराची में है तो कराची के कोचेस लगाने चाहिए, ताकि उसी सिटी के साथ जो आपकी जो कनेक्शन होती है ना, और एक आपका पेट्रियोटिज्म होता है उस सिटी के साथ, वो दूसरी सिटी में जाके नहीं होता। ये एक नेचुरल सी चीज है। तो आपको आइडेंटिफाई करने चाहिए। आप प्लेयर आइडेंटिफाई करते हो, आप कोचेस भी आइडेंटिफाई करो। कराची में होते हैं एक आध लोकल कोचेस होते हैं, विच इज वेरी गुड, मगर मुझे दूसरी फ्रेंचाइज में नजर नहीं आया। विमेन कोचेस रखे हुए हैं अपना नाम कमाने के लिए, उन्होंने विमेन को लाके रख दिया कि यार हमारी बात होगी कि मैं, देखिए, सक्सेस नहीं हूँ, मगर मैं ये समझता हूँ कि मेंस क्रिकेट जो है, अगर आपके पास मेंस क्रिकेट में गैप है कोचेस में, तो फिर समझ में आता है आप वुमेन्स को इन्वॉल्व करो। अगर आपके अपने कोचेस इतनी लाइन लगी हुई है जिनको मौका नहीं मिल रहा, फिर बाहर से लाके आप दूसरे कोचेस को लाके सिर्फ अपना फेम लेने के लिए करते हो, तो दिस इज नॉट गुड। मैं इस चीज से बिल्कुल डिसएग्री हूँ, और मैं वुमेन्स के खिलाफ नहीं हूँ, मगर अगर मेंस क्रिकेट है, मेंस क्रिकेट में मेंस स्टाफ होना चाहिए, वुमेन्स क्रिकेट है, वुमेन्स क्रिकेट में टॉप क्लास वुमेन्स स्टाफ होना चाहिए। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द वुमेन टू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ द मैन। उसको टाइम लगता है समझने में। मैंने भी वुमेन्स टीम की कोचिंग की लंकाशायर के, मगर पहले साल में मैंने बहुत सी चीजें सीखी, कम्युनिकेशन कंप्लीटली डिफरेंट थी, तो बहुत मुश्किल होता था। तो उसके लिए एक्सपर्ट होना जरूरी है। तो वुमेन्स के लिए भी यही बनता है कि ना, अगर वो मेंस क्रिकेट में आते हैं तो उनका एक प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंस के साथ काम करने का, कि उन्होंने किस लेवल पे कहाँ काम किया है। आप सिर्फ अपनी फ्रेंचाइज का नाम बनाने के लिए और फेम कमाने के लिए इस तरह नहीं करना चाहिए आपको। Nick, I really appreciate your time and wish you all the best for the future. And inshallah, we'll catch up soon. Thank you. ओके, अल्लाह हाफिज।